بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم پاکستان اس وقت ایک انتہائی نازک اور حساس دور سے گزر رہا ہے اور ہندوستانی جارحیت اس وقت پاکستان کی سلامتی کے لیے مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت بہت مضبوط بھی ہے، دنیا میں اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، قوم اس پر اعتماد کرتی ہے، اور میں تو سب سے پہلے یہ اعلان کر چکا ہوں کہ وطن عزیز کی دفاع کے لیے پوری قوم ایک صف رہے گی۔ لیکن اس تمام تر یکجہتی کے باوجود آج جب پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تو توقع یہی تھی کہ آج کوئی قرارداد آئے گی، آج معمول کی جو کارروائی ہے وہ معطل ہو جائے گی اور اس صورتحال پر بحث کی جائے گی۔ لیکن وزیر اعظم سے لے کر وزیر خارجہ، وزیر دفاع یا کوئی بھی ذمہ دار منسٹر آج ایوان میں موجود نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد بانسری کس کے سامنے بجائیں، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ تو اس طریقے سے انتہائی اہم اور حساس مسئلے کو غیر سنجیدہ لینا کہ کوئی یہاں پر پارلیمنٹ کو بتانے والا کوئی نہیں، حالات سے آگاہ کرنے والا کوئی نہیں، جواب دینے والا کوئی نہیں۔ داخلی طور پر بھی ہم اس وقت ابھی ایک دوسرے پر تنقید اور جواب تنقید کے دائرے سے نہیں نکل سکے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو جنگ جاری ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب ہندوستان نے محاذ پر ہمیں للکارا اور ہماری فوج ادھر متوجہ ہوئی وطن عزیز کی دفاع کے لیے، تو کیا ملک کی داخلی جنگ کے ہم متحمل ہیں؟ اور اس کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے؟ حکومت نے کیا اس پر اسٹریٹجی بنائی؟ اسٹیبلشمنٹ نے کیا اس کے اوپر اسٹریٹجی بنائی؟ اس سے پارلیمنٹ کو کم از کم آگاہ کرنا چاہیے تھا، یا کم از کم ہماری جو تجاویز تھی آج اس حوالے سے وہ سننی جاتی، تفصیل کے ساتھ سننی جاتی۔ اگر کہیں کسی کمزوری پر کی نشاندہی ہم کرتے تو اس کو بھی تنقید تصور نہ کیا جاتا، بلکہ اصلاح احوال اور ان کی دفاع کو مستحکم بنانے کے لیے اس کو لیا جاتا۔ ایسی صورتحال میں ظاہر ہے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس طرح ایوان کی کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور ہماری جماعت باہر آ گئی۔ تو اس طرح پارلیمنٹ کے اجلاسوں کو غیر سنجیدہ بنانا، بے فائدہ بنانا، اور پوری کیبنٹ مکمل طور پر غائب رہنا، کوئی ایک منسٹر نہیں جو ایوان کو جواب دینے والا ہو، کوئی تجویز سننے والا ہو، کوئی تنقید سننے والا ہو، تو اس پر مجھے احتجاج بھی ہے، مجھے افسوس بھی ہے کہ اس طرح کیوں سوچا جا رہا ہے۔ جناب کیا انہیں دستیاب ہے وہ سیاسی تائید؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج کبھی بھی اکیلے نہیں لڑتی، پوری قوم اس کے پشت پہ آتی ہے اور قومی وحدت کے ساتھ جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ ایک مؤثر سیاسی قیادت اس کی پشت پہ ہونی چاہیے، جو 32 سے اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے، جن کو بااثر سیاسی شخصیات کہا جا سکتا ہے، یا جہاں وہ کھڑے ہوں وہاں دنیا ان کو سنجیدہ لیتی ہے،
ऐसी कोई सियासी क़यादत इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट पर हमें नजर नहीं मौलाना साहब ये बताएं कि सलाला चेक पोस्ट के साने से लेकर अहमदाबाद के सानियात तक हमने देखा कि पार्लियामेंट मुतहर्रिक रही, पार्लियामेंट को आला फौजी क़यादत ने न सिर्फ ब्रेक किया बल्कि लम्हा बलमा सूरत हाल से पार्लियामेंट आगा रहा। सियासतदानों की ये बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, उसको अवलियत दी जाती है, उसको तरजीह दी जाती है सियासतदानों की बात। अब क्या वजह है कि पार्लियामेंट के इजलास में ताख़ीर से इन्होंने तलब किया और अब उसको भी खैर संजीदगी है? सियासतदानों की आवाज़ क्यों इस तरह की क्यों सूरत हाल बनाई जा रही है पाकिस्तान में? फिर इसके अलावा मैं आपकी तायीद करते हुए ऐसी मुतनाज़ा चीज़ें सामने आ रही हैं, मिसाल के तौर पर नेहरू का मामला ऐसा मुतनाज़ा कि पूरा एक सूबा जो है वो वफाक के और पंजाब के मुकाबले में आ गया। इसी तरीके से माइंस एंड मिनरल बिल जो है वो बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में लाया जा रहा है, जो मुतनाज़ा है और जिस पर कौम ने उठना है और लोगों ने इस पर एहतजाज करना है कि हमारे हक के मालिक तुम कब से बन गए हो और किस तरह हमारे असासों पर तुम कब्जा कर सकते हो। इसी तरीके से जब जब मजहबी हवाले से जो तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब के हवाले से अदालतों ने फैसले दे दिए हैं, लोगों को सजाएं सुना दी गई हैं, उसके लिए दोबारा कमीशनें बनाना और उन तजावीज़ पे बात करना, ये मुल्क में तो नए नए हंगामे खड़े करने वाली बात है। लिहाजा हम यही चीज़ें ऐवान में ज़ेर बहस लाना चाहते थे और इनको हम हुकूमत के सामने रखना चाहते थे कि ये वक्त नहीं है इस किस्म की मुतनाज़ा चीज़ों को उठाने का कि हम ऐवान में बैठे रहें और ऐवान में हम हुकूमत की पॉलिसी की तरफ करें। इस वक्त तो एक ऐसी करारदाद की ज़रूरत है कि बाकी सब चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ मुल्क की दिफा के लिए हमने मुत्तहिद रहना है और जो चीज़ें हमारे इत्तेहाद के खिलाफ हैं उनके लिए क्या हिकमत अमली। अच्छा मौलाना, ये भी समझ सकते हैं कि अब हुकूमत समझती है कि जो अपोजिशन है उससे किसी किस्म का उसे डर नहीं है, शायद ये भी समझ सकते हैं कि इसलिए वो गैर संजीदा थी आज। अपोजिशन से डरने और न डरने का सवाल है आज? ये कोई बात है? कोई हुकूमत गिरा रहा है, कोई अदम एतमाद की तहरीक ला रहा है? कैसे सवाल आप कर रहे हैं? साहब कल ब्रीफिंग दी गई सियासी जमातों को वो कि आपस में शरीक नहीं, जमात का नुमाइंदा वहाँ मौजूद था। क्या आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में ब्रीफिंग ही काफी थी? ये ब्रीफिंग भी गैर संजीदा थी। जिनके साथ उन्होंने राब्ता किया वो तो चले गए, अगर हमसे भी राब्ता होता तो जरा हम भी चले जाते। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह गैर संजीदा इक़दाम क्यों लिए जाते हैं और किसी को ना इल्म, न पार्टियों को इल्म, न पार्टी क़यादत को इल्म, और वो ब्रीफिंग दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हालात से कोई मुताबिकत और मुनासिबत नहीं रखती। मैं सोचता हूँ कि सिर्फ फौजी सोच और अप्रोच काफ़ी नहीं है, इसमें मजबूत पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो होना चाहिए और हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसियाँ जो हैं वो पूरी कौम की पॉलिसी। जैसे आज आपने बात की इसी तरह कल दूर है, जंगी सूरत है, आप क्या समझते हैं कि जंग कितना दूर है? देखिए, दूर या करीब होना अलग बात है, तैयारी जो है वो होनी चाहिए और भरपूर तैयारी के साथ हमें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। रही बात जंग की बात इंडिया कर रहा है, जंग की बात पाकिस्तान ने नहीं की है। पाकिस्तान ने जवाबन रद्द-ए-अमल दिया है। अब बात यह है कि हिंदुस्तान की हुकूमत को वहाँ खुद सपोर्ट नहीं मिल रही, वहाँ अपोजिशन की सपोर्ट उनको नहीं मिल रही, सियासी जमातों की सपोर्ट नहीं मिल रही, मजहबी जमातों की सपोर्ट नहीं मिल रही और हुकूमत वहाँ पर बिल्कुल तनहा है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है कि यहाँ एक मुल्क की यकजहती मौजूद है मुल्क की दिफा के लिए, जबकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हुकूमत की जो पॉलिसी है और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को थ्रेट किया है, मेरे ख्याल में उसमें कोई माकूलियत नहीं है। और इस हवाले से जो इब्तदाई खबरें आई थी कि किस तरीके से FIR काटा गया, किस तरीके से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया, ये सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जैसे उन्होंने बस उजरत में की हैं और वो कोई सियासी फ़ायदा उठाना चाहता था मकामी सियासत में, जो हासिल नहीं कर सका। बड़ी तमन्ना आवाज है मिशन के अंदर, तो क्या हम उम्मीद रखते हैं कि विश्व के प्लेटफॉर्म से KBC बुलाई जा रही हुकूमत को भी दावा दी जाए ताकि अकाउंट वोट इंडिया को बड़ा भरपूर पैगाम जाए, तो हुकूमत को काम करने में नाकाम रही है, तो आप करने जा रहे हैं सब? देखिए, हुकूमत करे हम करें, ये सवाल जब पैदा होता है यही तकसीम का सबब बनता है। इस वक्त तो हुकूमत को करना चाहिए सारा कुछ, और अगर हुकूमत खामोश है, अपोजिशन इजलास बुला लेती है, ये भी एक तकसीम का अलामत बनती है। तो मेरी राय में ये सारे स्टेप्स जो हैं इस वक्त हुकूमत को उठाने चाहिए थी और हम अगर उठाएंगे, हम तो कल भी उठा सकते हैं, हमारा कोई मसला नहीं है। हमने तो सबसे पहले बयान दिया कि आज पाकिस्तानी कौम एक साथ है और हम अपने वतन अजीज की दिफा
पूरे एक कौमी क़ुव्वत के साथ और सोच के साथ करेंगे और उससे एक यकजहती की फ़ज़ा बनी है, यकीनन बनी है, तो उसको सबूताड़ न किया जाए। गैर संजीदगी से यकीनन फिर दाखिली मामला छिड़ेंगे, तनकीद होगी हुकूमत पर और वो यकजहती केपीके में आप लोगों की बड़ी नुमाइंदगी है। केपीके के जो हालात काबू से बाहर हो रहे हैं और जो दूसरे दल जी अंदर आ रहे हैं और काफी हद तक अंदर आ चुके हैं, आपकी पार्टी उसको कैसे देखती है? आप क्या समझ रहे हैं, उसका क्या हाल है? देखिए, मैंने पहले भी यही बात कही कि एक तरफ हिंदुस्तान की जारहियत, एक तरफ बलूचिस्तान और केपी में जो दाखिली जंग चल रही है, इसके लिए कोई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी हमारी होनी चाहिए और सियासी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए इसमें, ताकि हम इसके लिए रास्ते निकालें। और अगर एक तरफ हमारी पोजीशन जो है वो बहुत संजीदा है, तो दूसरे अतराफ पर हमें एक काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम हमजिहत जंग में न उलझे रहें, वरना हिंदुस्तान हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाएगा। जी मौलाना साहब, पीटीआई ने 7 मई को एपीसी बुलाई है लाहौर में, आपको दावत आई है? अगर आपकी तो आप पीटीआई की एपीसी में जाएंगे? मुझे खबर आई है, दावत नहीं है। मौलाना साहब, इस हवाले से आप हमेशा जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और सारी सियासी और जमहूरी वोटों को इकट्ठा करने में भी मजबूत रहते हैं। मियां नवाज शरीफ के साथ इस हसास मामले पर कोई राब्ता करेंगे? अगर तो कोई ऐसी तजवीज़ संजीदा तौर पर सामने आ जाती है कि हम एपीसी बुलाते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में उनको भी शरीक होना चाहिए। वो भी पाकिस्तान के एक अहम शख्सियत हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो उनकी शख्सियत और उनकी अहमियत से तो हम इनकार नहीं करते। मौलाना साहब, ये बता दें कि यकीनन आपकी यहाँ सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खित्ते में जमीयत उलमा इस्लाम को हम देखते हैं एक मजबूत और एक मकबूल जमात है। इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है और कशीदगी बढ़ती जा रही है, आप एज ए होल भारत की जो बीजेपी और कांग्रेस की क़यादत है, आप ये समझे कि इस वक्त जो है आप खित्ते में अपनी जमीयत उलमा इस्लाम उसकी नुमाइंदगी, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे सूरत हाल पर खित्ते पे? मेरे ख्याल में मोदी जी जो है जो फ़िरका परस्त है और जो मुस्लिम दुश्मन तस्वुर किए जाते हैं, और गुजरात में जब वो वज़ीर आला थे तो मुसलमानों का कत्लेआम किया था, लिहाजा उसको एक उसकी ज़हनीत एक फ़िरका वाराना ज़हनीत है। हिंदुस्तान को भी इस बात की ज़रूरत है कि वहाँ पर एकजहती हो। अगर उनका आईन एक सेकुलर आईन है और उसमें हिंदुस्तान के हर शहरी बराबर की हैसियत रखते हैं, तो फिर वहाँ इस किस्म की ज़हनीत अगर हुकूमत करेगी, तो वो जिस तरह उन्होंने अब इलेक्शन में तो शिकस्त खा गया था, इत्तेहादियों के सहारे हुकूमत कर रहा है, फिर उससे जो तब्दीलियाँ कश्मीर में की और जिस तरह डेमोग्राफी को तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन इलेक्शन में कश्मीरी आवाम ने मुस्तरद कर दिया उनको, ये चीज़ें उनके आसाब को तोड़ चुकी थी। आज उसको एक बार फिर मौका मिला है कि इस वाक़े का सहारा लेकर वो मुसलमानों के खिलाफ हिंदू वोट को इकट्ठा कर सके और हिंदू ग़ैज़ ग़ज़ब को उठा सके मुसलमानों के खिलाफ, जो कभी भी हिंदुस्तान के फ़ायदे में नहीं जाएगा, न हिंदुस्तान के मफाद में ये बात होगी। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तानी कौम को भी सोचना चाहिए कि एक ऐसा फ़िरका परस्त जो कौम को आपस में लड़ाता है, जो अपने मुल्क को दूसरों से लड़ाता है, बिला तहकीक लड़ाता है और अंधापन इल्ज़ामात लगा रहा है, इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में इस वहाँ जो अपोजिशन का रोल है हुकूमत के हवाले से, कि उसको यकजहती नहीं मिल रही है, इत्तेफाक राय नहीं मिल रहा है, उसकी यही वजह है। बहुत शुक्रिया।